all to Rotary Ishania Youth Conclave. So, what is Rotary? रोटरी एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज तक अपनी सोच और एक्शंस के द्वारा इस दुनिया में पॉजिटिव चेंज लेके आया है, फिर चाहे वो सोशल कॉज हो या व्यक्तिगत उन्नति। रोटरी में हम हर तरह से ग्रो और ग्रो ही होते हैं। तो आज का हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है, ग्रोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल फील्ड। We request our club president Rotarian Pritesh Chandak to please come forward for his opening remarks. Good morning. Good morning. A very good morning to all of you. First of all, please tell me how many youngsters are sitting over here. Give me a cheer. I welcome you on the behalf of Rotary Club of Ishania for second Youth Conclave. Friends, we guys should be proud of our juvenile generation. These youngsters have tasted success at very young age. They not only have inspired us, but also proved us. Be aware what you are pursuing. Be aware what you are pursuing. You can get a success anytime. Please, whatever you are doing, please do it convincingly. These youngsters have set an example for all the individuals that if we have a will, we can achieve anything in the life. If you have a vision in your life and ready to face the challenges, believe me guys, success is just one of the milestones of the journey. Hard work is done by almost everyone, but when you spend your hard work on a smart work, it converts into an appreciable work. Guys, Youth Conclave, second time Youth Conclave, we are organizing it second time. Earlier we have identified last year. In the 1920, we have given an opportunities to all the youngsters, those who have set an example in this society in various ways. Friends, Rotary Club of Nagpur Ishania believes जितना हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग प्रोफेशनल्स को अप्रिशिएट करेंगे, उतना हमारा देश आगे जाएगा. We are average age of, we Indians are average age of 29 years, right? We are full of youth. Friends, Rotary Club of Nagpur Ishania, every year we are going to organize similar kind of program for you. And thank you, thanks a lot. Back to Amos. Thank you, Rotarian Pradesh. Now I request Rotarian Suman, please introduce our first speaker. जैसे कि आप सभी को पता है, इस मेगा ईशानिया यूथ कॉन्क्लेव की हमने थीम रखी है पैशन, पर्पस एंड प्रोग्रेस, और इसी के लिए हमने यहाँ 11 युवा स्पीकर्स को बुलाया है जो कि अपनी लाइफ के पैशन के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं. और आज हमारे साथ ये यंग डायनामिक स्पीकर्स खुद की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शेयर करने जा रहे हैं. BNI is India's largest and most successful business networking organization. 2 लाइन भावेश के लिए कहना चाहूँगी. इतनी सारी खूबियाँ हर जगह हो आप मशहूर, क्या तारीफ करे आपकी, आप तो खुद हो कोहिनूर. Thank you so much for this beautiful introduction. Good morning, everybody. Good morning. Wow, I saw somebody waving at me, right? So he was just repeating, can we all wave, right? Good morning. Good morning. Wow, great audience, huh? So I love stories. How many of us like listening to stories? All of us, right? So this one is for all of us. Now what once happened,
there was King Alexander, and King Alexander had a beautiful library. इतनी बड़ी library थी उनके पास. एक छोटे से incidents में, एक fire incidents में, that library got burned. हम ये पास love books, उनको बुरा लगा होगा, right? बहुत बुरा लगा. So these books, when they were burned, there were a couple of people who used to visit that library every day. उसमें से एक इंसान को इतना बुरा लगा, वो उस लाइब्रेरी में विजिट करने गए कि वहां कुछ तो बचा होगा. जब उन्होंने देखा वहां सिर्फ एक बुक बची थी, एंड वाज दैट बुक वाज नॉट अ वेरी फेमस बुक. इवन देन एक रिमेम्बरेंस के लिए उन्होंने वहां से बुक उठाई और अपने घर चले गए. एंड ही स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक. जब उन्होंने बुक पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट ही स्टिल थॉट दैट आई विल कंप्लीट दिस बुक. एंड व्हेन somewhere in between he realized that book was saying that there is a beach nearby. एक बीच है, वहां पे एक स्टोन है. वो स्टोन is a magical stone, and this magical stone, if you pick the stone and touch that stone anywhere, that will convert into gold. Right? How many of us would like to have this kind of a stone? All of us, right? As young entrepreneurs, we would want to get this stone. अब ये उनको बीच तो पता चल गई, वो बीच पे चले गए, उनको लगा यार कुछ फेक होगा, लेकिन उस बुक में लिखा हुआ था कि ये स्टोन कैसे अलग रहने वाला है बाकी सारे स्टोन से. बीच में बहुत सारे स्टोन होते हैं, तो ये कैसे अलग रहने वाला है. तो उन्होंने बुक में जब डिटेल में पढ़ा, बुक कंप्लीट की, तो उनको समझ में आया कि वो स्टोन जो है बाकी स्टोन से ज्यादा वार्म रहेगा. इट्स गोइंग टू बी अ वार्म स्टोन. वो ठंडा नहीं रहेगा. बीच में जनरली ऑल द स्टोन्स आर वेरी कूल, नॉर्मल टेम्परेचर. सो व्हाट ही डिड इज when he reached that beach, एक जन कैसे करेंगे, he thought. So what he started picking up those stones, sense the temperature. अगर ठंडा है तो समुद्र में फेंक दिया. He kept doing this for the whole day. पूरा दिन हो गया यही करते रहे. अब next day उसको लगा और मेहनत करूं क्या. He said okay, मैं करता हूं और मेहनत. He started picking up the stones. And soon 2-3 hours later, what he realized was कि एक स्टोन जो उसके हाथ में अभी लगा था और उसने फेंक दिया, वो वार्म था. Now what happens in life? हमें हमेशा एक आदत हो जाती है एक एक्शन करने की, right? We continuously do that, and in this continuous action, we throw certain opportunities that come in our hands. We throw these opportunities. So I'm going to share 3 of my life stories, very close to my heart. How many of us want to listen? All of us. Thank you guys for raising hands. So the first story is when I entered my college. So I am a graduate from Sir J.J. College of Architecture. It's a beautiful architecture college in Bombay. वहाँ पे जब मैं एंटर किया, और बहुत सारे लोग क्लास में जाने के लिए उतावले रहते थे कि इतना बढ़िया कॉलेज है, हम क्लास में जाए. I was not a class person, so I used to roam out. और एक कंपटीशन थी, I participated in that competition, and I don't know how, I should not say this, there was a lot of effort that went, there was a teamwork that happened, and guess what, our team was first across the country in that beautiful art installation competition. And after this competition, our college principal, he called the whole team, और उन्होंने पूछा कि ये कैसे किया आपने. तो उन्होंने मुझे आगे पुश कर दिया पूरी टीम ने कि आप बताओ. हमने बताया उनको. Since then he started giving me these small stones, right? And उन्होंने जो सबसे पहला मुझे काम दिया was हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के तब जो वाइस चांसलर थे, उस वाइस चांसलर के पास बहुत सारे गणेश आइडल्स थे. वो गणेश आइडल रखने के लिए वॉल फ्रेम बनाना था. Guys, एक आर्किटेक्ट के लिए, how many of us are architect? This is not a great job to do, right? एक छोटा सा wall frame बनाना, but we did it. And after doing that, there were a lot of opportunities that started coming to us, ranging from MRVC, जो local trains का development कैसे होगा, उसके stations का development कैसे होगा, वो decide करते थे. वहाँ से लेकर Bombay Port Trust. Then we also got an opportunity of designing museum for Central Railway. So Chhatrapati Shivaji Terminus, how many of us have been there? So there is a museum, guys. Whenever next you are going, give me a call. I will arrange a museum visit for you guys. So that museum has been designed by me. And post that, I got a beautiful opportunity.
this opportunity was very close to my heart. And that is designing Chhatrapati Shivaji Maharaj statue in between the Arabian Sea. Not a lot of people, I generally don't be this loud. लेकिन वो statue world का tallest statue होने वाला है. It's a 700 feet tall statue, and I got that opportunity to design. That opportunity, when it came, my principal told me you have only 36 hours, and we have to present. Right? How many of us feel that कोई भी opportunity आया तो बहुत easily आ जाएगा? Guys, if you're thinking that doesn't happen, it comes with a lot of challenges. For 36 hours, I couldn't sleep. I did not want to sleep rather, and we completed that. And today, it's a Pride Government of India project. The second story that I'm going to share here is when I was in Goa. How many of us love Goa? All of us, huh? We have smiles on our face. So I happened to be there in Goa for 3 months. That's huge. So there was a project that I had to take care of from a company where I was doing my internship. अब वहाँ गोवा में क्या हुआ? वहाँ रहते रहते I got a call from my boss and he said, Chirag, his name is Chirag. Chirag said, Bhavesh, वहाँ पे जो CM है, was then he's not today with us. Late Shri Manohar Parrikar, उनका हमें office design करना है. That was a great opportunity. I said, okay, I will do it. So designing से execution से वहीं करना था. But one day what happened, 2.5 months later, when I was on the site, I was on Manohar Parrikar's site, his office site, at morning 6:30. Manohar Parrikar was there. He had his own way. Okay. वो उनकी एक येलो वेस्पा थी, वो पीछे अपने बॉडीगार्ड को बिठा के used to come. Yellow Vespa. He came and he said, Bhavesh, he did not know my name. So he said, please come here. The only person he could think I can talk and understand इतना सुबह क्यों site शुरू है. He called me and he said, why is the site on at this hour? So I said, do you want an honest answer or I should? He said, of course, honest answer. I told him, a person like me in 2.5 months of being in Goa could not make a single friend. Right? How many of us have been to Goa more than 10 days? At one stretch? Right? Guys, you cannot make friends there. They are very close. And this is something जो उनको बड़ा shocking लगा. And he called up 6:30 in the morning. He called up a lady और उनको बोला, Vinita, I am sending you a contact of this guy. Can you take him to your business meeting? And that is where she took Vinita. The next week, she took me to a business meeting. And I realized I can make a lot of friends here. उस दिन के बाद और 3 महीने में गोवा में रुका. But किसी भी दिन सुबह 3 बजे से पहले फ्लैट पे वापस नहीं पहुंचा. Right? So this is how I made friends in Goa. And even today, if I go to Goa, everybody knows that Bhavesh is coming. Those are those good friends. It's a decade-old story, guys. The third story that I'm going to talk about is when I came to Nagpur. I came back to Nagpur after my studies, after my internship, my work experience and everything. We were a group of 11 friends. All 10 of them chose to do engineering. I alone chose to do architecture. And I realized engineers को बहुत सारे jobs नहीं मिलते नागपुर. The kind of jobs they want. So what happened? जब मैं नागपुर आया 6 साल बाद, ये सब लोग बाहर चले गए थे. So eventually I had no friends in Nagpur also. That is where one of my friends, she called me. She said, Bhavesh, I am coming to Nagpur और हम एक event attend करेंगे. The name of that event is Karma Kitchen. Has anybody experienced Karma Kitchen? You have experienced. Only one. Can we have a round of applause? Guys, I'm sure we'll organize Karma Kitchen again and we will give you all an experience of Karma Kitchen. It's a beautiful concept. I don't know, for me, it is the best place I had been because I got my business partner from there. I got my life partner from there. Right? So, she's here. She's right here with me. So, there, after 1 year of our friendship, Riddhi and my friendship, she told me that she is applying for BNI.
I thought what is BNI? उन्होंने explain करना शुरू किया. मैंने बोला ये तो मैंने attend किया है गोवा में. And that is where we clicked and we said, okay, we'll bring BNI to Nagpur. That is our core business today. The second thing that I'm going to talk about is Pick a Book. Pick a Book is a big book reading club. Again, we slowly realized our forte is collecting people together. Okay, so business people, we'll collect them together. Okay, intellectual people, book reading people, we'll collect them together. So again, we've got an opportunity of bringing in corporate connections. We'll talk about this sometime later. But what I'm trying to tell by these 4 stories is opportunity रुक के नहीं आती कि ठीक है मैं बैठा हूं, ये अपॉर्चुनिटी आई, ये नहीं चाहिए चली गई, दूसरी आई, ये नहीं चाहिए चली गई. अपॉर्चुनिटीज और लाइफ अकॉर्डिंग टू मी माय एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बनते. अपॉर्चुनिटीज जो सामने आई उसको ग्रैब करके उस पे काम शुरू करने से दूसरी अपॉर्चुनिटीज आती है, उसी लाइन से अपॉर्चुनिटीज आती है. सो फॉर मी opportunities are people. The day Mahesh, where is he? He's on phone. Coordinating guys, coordinating. So can we have you standing, Mahesh? Please आप खड़े हो जाएंगे. आप सब लोग और हम इन्हीं के कारण यहाँ पे. Can we have you join? So for me, right opportunities come with right people. I don't know, हमारी दोस्ती हुई, अब वो मुझे यहाँ बुलाएंगे मुझे कभी नहीं पता था. Right? But again, I am with all of you. Whenever you want, we can exchange numbers. And I'm sure all of these dots that we are creating today is going to be a beautiful picture someday. So keep grabbing opportunities. Don't wait for right one. Right? Thank you so much. Dr. Vartika Patil is CEO and founder of Dr. Vartika S Confidence Academy. She is PG Diploma in Head, Best Personality Groomer and Pathologist at the hands of Shri Nitinji Gadkari in 2021. I must say one thing, when women stands for themselves, great changes happen. So, please welcome Dr. Vartika Patil. Thanks for a wonderful introduction, ma'am. At the outset, I'd like to thank Mahesh and Suman, my very good friends, for giving me this opportunity to be able to stand in front of you and considering me as an entrepreneur, and that too a successful one at that. It's really an honor to be here today. And I can see the crowd is really cheerful, very supportive and encouraging. Bhavesh has had a very good speech, so I have to match up to him to be able to inspire all of you all. So I'll try my best, definitely. Yes, I am a doctor. I am a pathologist by profession. I've done my MD in pathology from Mumbai, then I went on to London to do my MRCP, and that's my passion. I have been introduced as the CEO, founder of Dr. Vartika's Confidence Academy, but there is something else to me as well. As a woman, we have multiple identities. We can be a mother, a daughter, a sister, a mother-in-law, a wife. So why can't I have multiple passions? I am a very passionate person by nature itself, and I love stage. That is also one of my greatest passions. Right from my childhood, I come from a very academically oriented family. तो हमारी family में था कि पढ़ाई तो करनी है, पढ़ना तो है ही. There is no substitute. So doctor बनना was my passion because I loved science and I loved everything about biology right from the beginning. And that is how my passion led me into becoming a doctor. Then, I also loved stage. In school, I was very good in extracurricular activities, be it elocution, debates, or anything. It was just the love of stage. I just loved being there, and I used to enjoy myself thoroughly when I used to be there. So that is also my passion. Some of us like singing, some of us like cooking, some of us like dancing. The same way, I like the stage. And the stage has brought me to this stage here that I'm able to stand in front of you all today. I believe that no vision and you perish, no idea and you're lost. Your heart
must ever cherish some faith at any cost, some dream, some hope to cling to, some rainbow in the sky, some melody to sing to, and some service that is high. I have always followed these principles in my life, and I have, stood by them. The theme of Rotary Ishania is passion, purpose, progress. तो जिस दिन आप अपना पैशन समझ जाएंगे और उस पर मेहनत करना शुरू करेंगे, आपको एक पर्पस मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, आप उस पर प्रोग्रेस करेंगे। People ask me how I manage being a doctor and being a beauty pageant winner. So many of you all know me by that, Mrs. Universe and all sort of that. I tell them, if you are not driven by passion, you are not going anywhere in life. Many of us, Yogastha Guru Karmani is Lord Krishna's sentence, and many of us start out with a lot of passion. But one discomfort and we give it all up. We quit. It's easier this way. I'm happy. I'm earning and I'm happy. For me, my passion was never driven by looking at the financial outcome of it. I became a doctor because I love science. I'm earning through my medical profession. That's a byproduct of my passion. I became a beauty queen. That was my love for stage, because when I was in school, I used to get a lot of platforms to be on stage, but when I went to a professional college and after marriage, I realized that there are not many platforms where I could express myself. But beauty pageant was a booming industry at that time. And my love of stage took me there. You know how it all started? I was in my second year of MBBS, and since I had a good height, my friends encouraged me to participate in the intercollegiate competition at Government Medical College that was called as Miss Sanjeevani. That day, I loved the entire environment, but I was so naive. मुझे मेकअप का M नहीं आता था. ब्यूटी पैजेंट या पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में आप जाते हैं तो एक होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक ड्रेसअप होता है. मुझे कुछ नहीं पता था, ना ही मेरी मम्मा को पता था. मुझे साड़ी राउंड था उसमें. माय मॉम गिव मी हर बेस्ट साड़ी, बट दैट वाज एक्चुअली हल्दी कुमकुम का साड़ी, जो हम हल्दी कुमकुम पे पहनते हैं, जरी बॉर्डर की इस वाली जो बॉर्डर वाली साड़ी होती है, वो मुझे मम्मा ने कही कि ये मेरी बेस्ट साड़ी है, ये तो तुम बहुत अच्छी लगोगी. बट जब हम वहाँ गए, वी गॉट द शॉक ऑफ आवर लाइफ. सारी लड़कियाँ वहाँ पर अपना अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट लेकर आई थी, और मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता था. लिपस्टिक एंड काजल लगाकर वहाँ पहुँच गई. साड़ी राउंड में सारी लड़कियों ने एक से एक शिफॉन, जॉर्जेट, नेट और ऑर्गेन्जा और ब्यूटीफुल साड़ीज पहनी, एंड आई वाज वेयरिंग अ सिल्क बॉर्डर का हल्दी कुमकुम वाला साड़ी ऑन द स्टेज. और मेरी मम्मी और मैं टेंशन में आ गए कि हम ये कहाँ आ गए, बट आई लव द स्टेज. एंड दैट कॉन्टेस्ट I won. Not because I was perfect in my makeup, not because of my dress. I tell you, it was only surely because of my passion. Everyone else there was perfect. Makeup perfect, costume perfect, puri team with them, makeup artist, ये वो सब कुछ check. But हम क्रिकेट के सारे नए कपड़े पहन ले, सारा सामान ले ले, but क्रिकेट ही खेलना ना आए, तो क्या मतलब है? When you play the game, you should know the rules of the game. When I went on stage, I was all there. My passion was the thing that led me to be the winner, and I got crowned despite of not being the perfect looking model there that day. So this is what passion is. It all comes very naturally to you. Something which you're good at, you will realize that बहुत effort नहीं करने पड़ते हैं आपको उसमें. लोग बोलते हैं हार्ड वर्क. इट्स नॉट हार्ड. जब आपको अपना पैशन समझ आ जाता है ना, तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है और आप वो प्रोसेस एंजॉय करने लगते हैं. आज मैं देख रही हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो इतने ब्यूटी पैजेंट्स नहीं हुआ करते थे, बट आज नागपुर शहर में आई थिंक 15 से 20 ब्यूटी पैजेंट्स तो यही हो गए. एंड वी हैव सो मेनी क्राउन होल्डर्स इन दिस सिटी. सो I always tell them, don't get inspired by me. आप लोगों को भी मैं बताऊंगी, डॉक्टर ही बनने के लिए मैं आपके यहाँ स्पीच नहीं दे रही हूँ, या डॉक्टर बनने के बाद ब्यूटी क्वीन बनने के लिए मैं यहाँ स्पीच नहीं दे रही हूँ. I don't want to be a role model. I am just sharing my journey with you. But ultimately, you have to be your own heroine or hero of your life.
and not the victim of your life. Many of us lead our lives being the victim, playing the blame game or just marinating in our own mediocrity. That is not what you are meant to be. अगर आप अपनी ही जिंदगी में अपने कंफर्ट जोन में खुश रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं जा सकते। मैं अपना प्रोफेशन में भी अच्छा ही अर्न कर रही हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, मैं अपने पैशन से भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रही हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, बट आई नेवर लुक्ड एट द फाइनेंशियल आउटकम ऑफ एनी ऑफ दीज। आई एम टेलिंग यू, मनी इज द बाय प्रोडक्ट। जैसे 3 Idiots मूवी आप सबने देखी होगी, दैट फॉलो एक्सीलेंस, सक्सेस has to come. It has to come, and obstacles होने ही हैं. See, it is very easy to be pleasant when life flows along like a song. But the man worthwhile is the one who will smile when everything goes dead wrong. But the test of heart is trouble, and it will come with the years. But the smile that is worth the praises of the earth is the smile that will shine through the tears. So you should have this attitude. When you realize that you love doing something, painting, singing, whatever, pageantry, whatever, even if you love studying, I love studying, I'm a very studious person by nature. All this is the love of stage that has made me what I am today. But I am a studious person, I love science. So my passion has brought me here, that Mahesh and Suman they have considered me, good enough to be standing here and talking in front of you. And ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप एक ही पैशन हो। हर इंसान के मल्टीपल पैशंस हो सकते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती है, और वो मल्टीपल एरियाज में सक्सेसफुल हो सकता है। जो भी आपको पसंद है उसके लिए प्लेटफॉर्म ढूंढिए। अगर आप अच्छा पेंट करते हैं, फाइंड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एग्जिबिट योर टैलेंट। इफ यू कैन सिंग वेल, find a platform where you can exhibit your singing talent. If you are a fashion designer, you're good at designing, find a platform where you can exhibit your talent. That is progress. Don't just sing in your bathroom or in your kitty parties. Especially to females, I will tell them that we are so engrossed, family, बच्चों का 10, बच्चों का 12. I am telling you, you have just one life. And when you realize that you love what you're doing, you automatically love your family, and आप आज जो आपके फैमिली को दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप आपके फैमिली को प्यार और सपोर्ट दे सकेंगे जब आप अपनी एक छोटी सी ही सही मगर आइडेंटिटी बनाएंगे। Very important it is to love. If you don't love yourself, you cannot love anyone else. And sacrifice. A female is known, she has to sacrifice. It's a very cliche term and definitely does not work. It's not done. That females should always be put up on a pedestal and she should be sacrificing and cooking all the while for her. Ask my husband, he's very happy. I cook for him. I also work in a hospital. I have my own laboratory. I have my beauty pageantry, I have my confidence academy, I have my students, I have a daughter. She also comes first in class. How am I able to do all this, people ask me. It's because this comes naturally to me. My profession and my passion, it comes very effortlessly to me. I don't, work my dash off to become and to reach where I am today. It's very effortless for me. But I find platforms to express myself. That is very important. And every time I stand up on a stage, speak in front of an audience or perform in front of an audience, I realize I grow. Every time you express yourself, you grow. So once in your life, try not to be the audience. Try to be a player. And the game will change. Be the first at something, not a follower, not a copy. The best version of yourself in whatever field you are. But most of all, be the main character of your life story and not a side role of your life story. Don't be a supporting artist. That is what I'd like to tell everyone. That follow your passion. Be driven by your passion. And as Lord Krishna has said, Yogastaha Kuru Karmani, that means first establish yourself within you. And everything else will fall in place.
don't establish ourselves within us, we get stressed, we get bored, and then we feel, अरे यार, this is too difficult for us. It's because आपने अपने अंदर अपने आप को स्थापित नहीं किया, तो आप बाहर अपने आप को कैसे लाएंगे? So all the best to you all. I really love interacting with you. Mahesh and Suman, it's a great platform and I'm very, very grateful. Thank you so much for inviting me. Thank you Dr. Vardika. Now we request our committee chair vocational Rotarian Pratul Daga to please come forward and introduce our today's chief guest, Shri Nitin Ji Khara. We hereby request Rotarian Pritesh Chandak, please escort our chief guest up to the dais. गुड मॉर्निंग एवरीवन। नितिन जी के बारे में या को तो सारा शहर जानता है और नितिन जी कॉन्फिडेंस ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और नितिन जी में इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने अपने ग्रुप का नाम ही कॉन्फिडेंस ग्रुप रखा है। नितिन जी की जर्नी भी अपने आप में एक शहर के लिए एक ये कहना चाहिए कि एक माइलस्टोन है। सर ने जिस प्रकार अपना व्यवसाय या जहाँ से शुरू किया था और आज सेंट्रल इंडिया में इनसे मतलब ही इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग एंटरप्रेन्योर। सर मैं अब ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपने बारे में और बची चीज़ों के बारे में। Thank you, Rotarian Pratul. Now I request our chief guest, Shri Nitin Ji Khara, to enlighten us with his few words of wisdom. सा विद्या विमुक्तया, नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स। एक ऐसा इंस्पिरेशन हमारे बीच में है नितिन सर, जिन पे ये परिभाषा जीरो से हीरो की एकदम परफेक्ट बैठती है। सर नॉलेज, आप जो भी आपकी सक्सेस स्टोरी है आप सुनाएं, यही आपसे विनती है। थैंक यू एंड द डाइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं रोटरी क्लब में आके क्या एक सुकून अंदर से मिलता है। आज हालांकि मेरे श्री राम भगवान का जन्म उत्सव में मुझे जाना था आज। मंदिर में पहले यहाँ जैन मंदिर दर्शन किया तो मेरे खास मित्र पीयूष भाई एकदम से नहीं, एक तो पीछे से लगे हुए थे। मैं बोला यार आज यूनिफॉर्म नहीं कुछ नहीं, हालांकि मैं 365 दिन में से खाली संडे छोड़ के मेरा सूट रहता है। आज फॉर्मल ड्रेस था। बोले इतने बढ़िया इंटरप्रेनर आए हुए हैं वहाँ, कैसे इसको नहीं बोले आप चलो, बोले चलो ठीक है। कोई कहानी मेरी कोई खास नहीं है, ऐसी कहानी तो ऐसी बन जाती है, कारवा बनता है और कहानी बन जाती है, बट लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है हालांकि। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर है, खास करके महेश भाई सोनी, रावण और डागा जी, इन्होंने जो मेहनत की है, मैं चाहूँगा कि एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत इतना यानी 12 एंटरप्रेनर को अच्छे से ढूंढ के लाना और उनको एक मोटिवेशनल देना कि नहीं, ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म जो बना है, आप आइए। उन्होंने जो किया है अभी तक, हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है उनकी लाइफ में, बट अभी तक का जो किया है वो एक अपने आप में बहुत है। उसको एक अपना प्लेटफॉर्म दिया रोटरी ने, और यहाँ पर उन्होंने अपनी जो अभी सुन रहा था, मैं थोड़ी देर पहले आया, डॉक्टर आई थिंक वर्तिका, सैल्यूट करता हूँ, बहुत बढ़िया बोलती है, बहुत। यानी एंटरप्रेन्योर के साथ वो कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में एक बहुत होता है। मैं तो हालांकि बिजनेस करता हूँ, मैं कल भी हमारे भावेश भाई ने हमको बुलाया था रेडिसन में, तो कल भी वहाँ था मैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे एंटरप्रेन्योर लोगों को देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी भी जर्नी जो है एक बहुत
मैं इतनी मेरी दुकान थी, ये जितना स्टेज है इससे भी थोड़ी छोटी थी, हालांकि तिलक पुतले के बाद आज भी है, अभी भी है। मैं हर हफ्ते में एक बार लगभग जाता हूँ वहाँ पर दर्शन करने के हिसाब से कि यहाँ से मैं चला था, भले कहीं पर आज यहाँ खड़ा हूँ, बट उसको मैं भुला नहीं हूँ और आज भी वो दुकान मेरी वहीं पर है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अकोला एंड कुछ करना है वो सोच के हिसाब से मैं यहाँ नागपुर आया। नागपुर में पहले वो तिलक पुतले के पास दुकान मैंने पहले ली, वहाँ पर भी मेरी कहानी ऐसी शुरू होती है कि उस दुकान में जब मैं बैठा पहले तो वहाँ बाजू में एक पान ठेला है, उस पान ठेले पे लोग पान खाने आते थे और लोग कहते थे कि यार ये कितने दिन का मेहमान है, ये यार क्या है, कितने दिन टिकने वाला है, क्या रहने वाला है। साला मैं समझ नहीं पाया कि क्या है क्या। वो सामने एक हमारे एक भगवान भाई उत्तम चंदानी की दुकान थी, उनको जाके पूछा जस्ट कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है ऐसा बोल रहा है। तो उसने कहा नितिन भाई ऐसा है कि यहाँ पर पहले 35 जने बदल चुके हैं अभी तक के और आप 36वें हो, तो अब आप पता नहीं आप क्या इस कारण से बोले दुकान काफ़ी अपसुकन मानी जाती है, ऐसा जो भी कहते हैं कि इस दुकान में जो भी आता है वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने ज़्यादा ज़्यादा 1 साल में तो बदल ही जाता है। तो तब मैंने बोला अब तो कुछ करके दिखाना है। सामने माता जी का मंदिर था, दर्शन किए, मैं बोला अब तो कुछ करना है। उस जमाने में मैंने एडवर्टाइजमेंट तो हालांकि काफ़ी महंगी पड़ती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक टांगे के ऊपर दोनों साइड में बोर्ड लगा के सेल का एक स्टेज लगा के ढोल बजा के लोगों को फैलाया। मैंने एक टांगा वाला किया और एक ढोल वाले किया, दोनों 35-35 रुपये में, यानी 70 रुपये मेरे को रोज का देना था उसको, और 70 रुपये रोज में वो टांगा रोज का 10 घंटे घूमता था। आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 1 महीने के अंदर उस दुकान में इतना रस आना लग गया, इतना, यानी वो दुकान हालांकि आप कॉर्नर में, कोई मार्केट नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि वो तिलक पुतला के कोने पे है, मार्केट महाल में था, इतवारी में था, बर्डी में था, सदर में था, बट एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि लोग इतना रस होता था कि मेरे को दोपहर को खाना खाने भी जाना पड़ता था, तो लोगों को धक्का मार के शटर डाउन करके फिर बोलता था माफ कीजिए मैं आता हूँ। और जब मैं आता था तो बाहर कम से कम लेडीज की 200-250 लेडीज खड़ी रहती थी, इतनी रस होती थी। ये कहानी की शुरुआत थी मेरी। उसके बाद जब मैं गैस चूल्हा बिजनेस शुरू किया उसके साथ में, क्योंकि हम 3 भाई थे, 2 भाई और मेरे अकोला से नागपुर आ चुके थे, तो मैंने बोला कुछ और नया करना चाहिए। तो मैंने एक गैस स्टोव यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में गैस स्टोव बनाने का काम शुरू किया पहले, सबसे पहले जो घर का गैस चूल्हा आता है। And I found that whenever government is releasing some new LPG connection, we are getting a very good response from the market. उस टाइम में क्या था, सिलेंडर की काफ़ी डिमांड थी, यानी लोगों को गैस अवेलेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम है। 90s की बात कर रहा हूँ, 1888-90s की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप होते गया और वी बिकेम ए नंबर 1 इन सेंट्रल इंडिया, हम लोग काफ़ी नंबर 1 हो गए। Then in 1993 government liberalized the policy that anybody can do import, anybody can do market. So I thought why don't we enter into LPG cylinder manufacturing? क्यों ना LPG cylinder manufacturing में आया जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक ओसान मेटल इंडस्ट्रीज करके एक यूनिट को देखा, क्योंकि उस वक्त क्या था, नया यूनिट लगाना गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती, वो लाइसेंस यूनिट गिने जाते थे, तो नए यूनिट कोई सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के लगा नहीं सकता था, तो या तो आपको एग्जिस्टिंग ही लेना पड़ेगा, कोई उसी को देख के टेक ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ओसान इंडस्ट्रीज करके तलमेश्वर में एक यूनिट था, वो मिस्टर आर.एम. गोकुलदास जो वरुण शिपिंग और धर्म सिंह मोरारजी के चेयरमैन थे, उनका वो यूनिट था। वो मैंने देखा, वो यूनिट मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बोला इस यूनिट को बात करनी चाहिए। मैं जब बॉम्बे बॉम्बे बैठते, बॉम्बे जब उनके पास पहुंचा पहले तो वो मैं सोचा कि वो यूनिट मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था यूनिट में लेबर प्रॉब्लम भी काफ़ी चल रही थी, और जो आर.एम. गोकुलदास थे दैट टाइम ही वाज अराउंड 84 ईयर्स ओल्ड थे, और नोबडी बिहाइंड हिम, कोई उनके पीछे नहीं था। तो ये सब समझने के कारण मैंने सोचा कि वो यूनिट मुझे मिल जाएगा। भाटियास थे। जब वो उनके पास पहुंचा तो पहले तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोले कि यार वो टोल्ड आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट, प्लीज गेट आउट फ्रॉम माय कैबिन। मैं बोला कि काका, मैं गुजरातीમાં વાત किया, जो તમારા પાસે આવ્યો છું, ઘણી ઈચ્છા છે, તમને યુનિટમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ છે, મને ખબર છે, तो प्लीज अलाउ मी, आई कैन रन इट प्रॉपरली, कर सकूंगा। तो नो आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट।
थोड़ा निराश होकर बाहर निकला। उसकी सेक्रेटरी को मैंने मेरा कार्ड दिया, मैंने बोला भाई प्लीज़ जब भी कुछ ऐसी इच्छा रहे तो मेरा नंबर है, लैंडलाइन नंबर रहते थे तब तो मोबाइल भी नहीं रहते थे, तो लैंडलाइन नंबर रहते थे अपनी दुकान के, तो वो दिया मैंने ऑफिस के। और नागपुर ऐसे ही हताश होकर वापस आया, थोड़ा सा निराश जरूर हुआ था। पर जिंदगी में कभी मैंने हारना नहीं सीखा है, कभी भी कल भी मैंने बताया था कि इन माई लाइफ आई नेवर, मैंने कभी बहुत मेरे उतार चढ़ाव आए, बहुत बार नीचे ऊपर बहुत चढ़ा मैं, बट कभी भी ऐसा जिंदगी में नहीं सोचा कि नहीं यार रुक जा नितिन, अभी यहाँ मैं चलते ही गया और कारोबार बहुत अच्छा बनते गया। तो साथ में फिर एक्चुअल क्या होता है, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत ही यानी क्वालिटी कंट्रोल बहुत रखना पड़ता है, यानी उसमें करीब 26 जगह पे BIS ऑफिसर तो फैक्ट्री में बैठता ही है, और 26 जगह पे टेस्ट होकर वो सिलेंडर बनता है, और सिलेंडर बन के जब अपने किचन में आता है तो एक्चुअली वो सिलेंडर्स में यदि कुछ गलती से भी कुछ छोटा सा भी लीकेज निकलता है, जब फर्स्ट सिलेंडर फिल होता है और लीकेज निकल के वो प्लांट में जाता है, तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट, ये दोनों के लाइसेंस सस्पेंड होते हैं, और उसके बिना वो सिलेंडर फिर उस फैक्ट्री में आप बना नहीं सकते हो। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी और अनफॉर्चुनेटली फॉर काका, उनका यूनिट 3 महीने में 3 लीकेज निकले, और वो 3 लीकेज निकलने के कारण वो काका एकदम 3 बार सस्पेंशन हुआ, तो वो परेशान हो गए यार, वो वेर इज दैट खारा, वेर इज खारा, प्लीज कॉल मी। तो मैं तो एकदम जाके फोन आया सेक्रेटरी का, तो बोला अच्छी बात है चलो पहुंचा। तो बोले सी आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट, बट तुम आए थे तो मैं बोलो क्या दोगे, बोलो काका यूनिट आपका है, कैसा करना है आप बताइए, जो भी करना है मैं जैसे आपकी इच्छा है, जो मैं चेक लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो वापस मैंने भी थोड़ा मन में देखा कि क्या काका क्या बोलते हैं, काका ने तो एकदम बोला कि 10 करोड़ रुपए लूँगा, बोले उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 93 की बात, 94 की बात थी, तो 10 करोड़ रुपए लूँगा बोले, उसके नीचे बोले यूनिट बेचना नहीं है। तो पहले थोड़ा सोचा कि अब यहाँ से खड़ा हुआ तो काका पता नहीं फिर चेंज हो जाए क्या हो जाए, तो काका के सामने चेक रखा, बोला जो आपको फील करना है, आपका लड़का हूँ बच्चा हूँ, जो भी आपको फील करना है आप देखिए। काका को एक बहुत बड़ी घोड़े का बहुत बड़ा शौक था, वो यानी रेस खेलने बहुत जाते थे, पूना में बहुत आते जाते रहते थे, यानी बॉम्बे से हर सैटरडे संडे पुणे ही जाते थे। तो मुझे पता था, तो मैंने अपने हिसाब से अपना एक मस्त सारथी वाला घोड़े का रथ, उनको जाके पहले चांदी का रथ उनको पहले ही दिया था, तो बड़े खुश हो गए थे। फिर बोले देखो ठीक है मैं इससे कम नहीं लेना है, तो रखा है आपको जो भरना है। तो उन्होंने 851 करके वो यूनिट को मेरे को, मैंने भी नहीं निगोशिएट कुछ किया, फिर मैंने ले लिया। जेब में उस टाइम में तो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया था मेरे जेब में, उतना उससे ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ये भी आप लोगों को खुला बताऊँ, क्योंकि वो भी मैंने चूल्हे वगैरह के बिजनेस से कमाया था, अपने 4-5 साल से जो नागपुर में आया था तो कमाया था। तो हो गया, वहाँ पे दे दिया उसी टाइम पे, पहला तो टोकन तो वही दे दिया। यहाँ आया, यहाँ आके फिर वापस उतनी क्रेडिबिलिटी बैंक वगैरह में भी अपनी थी नहीं, बैंक में अकाउंट बहुत अच्छा था, अपना बिजनेस बहुत अच्छा था, सब चल रहा था काफ़ी। तो यहाँ पर मैं आज भी उनको भुला नहीं हूँ, प्रभाकर राव दटके थे, शिक्षक सहकारी बैंक के चेयरमैन थे। उनके पास गया, मेरी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, वो उनको मैंने मेरा विजन बताया पहले, पूरा कम से कम 30 मिनट तक उन्होंने मेरे को ध्यान से सुना। उसके बाद में मैंने बोला कि यूनिट मैंने लिया है, प्लीज़ यदि आप फाइनेंस करोगे तो मैं यहाँ पे 36 महीने के चेक आपको हाजिरा दूंगा, एक भी चेक मेरा बाउंस हुआ आप वो यूनिट को टेक ओवर जो भी करना आप कर लीजिए, एक भी चेक बाउंस नहीं होगा, ये 36 चेक मैं आपको दे रहा हूँ। तो इमीडिएटली क्या था, नेशनलाइज बैंक थोड़ा फाइनेंस करने में उस टाइम में तो 3-4-5 महीने लगा देती थी। अब यहाँ तो काका को मेरे को 15 दिन के अंदर बाकी पेमेंट भी करना था सब, उतने कॉन्फिडेंस के साथ में आया था कि नहीं मेरा पेमेंट हो जाएगा। और ऊपर वाले ने भी देखा कि नहीं एक दौड़ने की ताकत रख रहा है, दौड़ रहा है, इसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। तो ऊपर वाले की चाह के साथ में प्रभाकर राव दटके भी इतने अच्छे थे, प्रवीण दटके जी आज जो है उनके पापा थे, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे बोर्ड मीटिंग इमीडिएटली 3 दिन के अंदर बुलाई उनकी शिक्षक सहकारी बैंक की, और इमीडिएटली मेरे को फाइनेंस कर दिया उन्होंने वहीं के वहीं। मैं बहुत खुश हुआ, यूनिट एकदम अपने हाथ में आ गया, और पूरे 36 महीने में अपन ने बाकायदा एक भी चेक बाउंस हुए बिना पूरे चेक अपन ने पास करवा के उस यूनिट अपने अंदर में आ गया। बहुत खुशी हुई। दूसरा फिर एक यूनिट मैंने देखा हैदराबाद में। अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है ना इंसान, तो फिर वो रुकता नहीं है, वो फिर अपनी दौड़ लगाते रहता है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, ऐसा यानी थोड़ा सा जो वर्तिका ने बोला, थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत के बिना होता नहीं है। देखो
साबुन से नहाने वाले रोज लिबास जरूर बदलते हैं, पर मेहनत से नहाने वाले मतलब पसीने से नहाने वाला एक दिन जरूर इतिहास बदलता है। ये मेरा मानना है। नो डाउट आपका जब पैशन हो जाता है, आप जैसे वो भी सही बोले, जब आपको कुछ पैशन लगता है कि नहीं मुझे दौड़ना ही है, दौड़ना ही है, दौड़ना ही है, तो आपकी रुकावट नहीं बनती। पर उसमें साथ में मेहनत बैलेंसिंग करके मैं आज जीता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ आपको, मैं सुबह 5:10 को उठता हूँ और सुबह से शाम तक मेरी लाइफ बहुत एकदम पंक्चुअलिटी यानी बहुत 100% पूरी। आप मेरे को बोलोगे 9 बजे मैं यहाँ दिखूंगा तो यहीं दिखूंगा मैं, 9:30 बजे ऑफिस रहूँगा तो 9:30 बजे ऑफिस ही रहूँगा मैं। तो यानी वो डिसिप्लिन आज भी करता हूँ और पूरी एंजॉय के साथ में जीता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक में देखते हैं हमारे पीयूष भाई, हमारे फ्रेंड सर्कल बहुत सारे बैठे हैं, अपनी साइकिलिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, करता। अभी वेट भी काफ़ी लॉस किया मैंने, करीबन 8 से 10 किलो वेट लॉस किया। अच्छा आनंद से पूरा मजा आता है। पिक्चर भी देखता हूँ, मूवी पे भी जाता हूँ, बीवी को भी खुश रखता हूँ कि नहीं वो जरूरी है। और ये बैलेंसिंग करके पूरा चलता हूँ। फैमिली पूरा परिवार को बहुत अच्छे से देखता हूँ, नज़दीक से देखता हूँ। ऐसा नहीं समझता हूँ कि नहीं, सभी लोग अपने अपने परिवार के हैं। और दूसरा मेरा सिद्धांत है कि टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता है। इंसान जब दौड़ता है ना, उसके साथ में टीम लगती है। अच्छी टीम रहेगी तो ही काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपके पास टीम नहीं रहेगी तो कोई आप अकेले दौड़ते रहोगे, ठीक है, बट आपके पास यदि टीम रहती है तो आज जो कॉन्फिडेंस ने नई ऊंचाई पाई है वो सब टीम वर्क के कारण। मेरे टीम यहाँ पर शायद आज है नहीं है, पता नहीं, विमल जी है, यतीन भाई है जो आपके मेंबर्स भी हैं यहाँ पे अच्छे, इलेश भाई है, यतीन भाई है, विमल परवाल जी है। तो ये जो जब टीम बनती है ना, उस टीम के साथ में जब आप दौड़ते हो तो आपको और एक मजा आ जाता है। आप एक अलग चीज से दौड़ते हो और एक इच्छा होती है कि नहीं कुछ करना है, पूरी टीम आपके साथ रहती है। आप जब उनको मोटिवेट करते हो, नहीं एक इम्पॉसिबल वर्ड को आप हटा दीजिए कि नहीं हो सकता है तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता है ये बात नहीं है, ये भूल जाइए कि नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज हो, होना तो होना ही है वो। ये जब मैं उनको बोलता हूँ तो उनके भी अंदर से एक आता है। और एक परिवार जब पूरा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मैं हर जगह पे, मैं आज लगभग मेरे छोटे बड़े सब, यानी जैसे हम लोग ऑटो एलपीजी सेक्टर में भी है तो हमारे 209 ऑटो एलपीजी स्टेशन है, 58 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है अलग अलग जगह पे, यानी पूरे पैन इंडिया में। आज जैसे कोयम्बतूर में है या सीहोर में है, भोपाल में है, अपने इंदौर में है, उदयपुर में है, विशाखापट्टनम में है, सब जगह पे अलग अलग जगह पे बॉटलिंग प्लांट है। प्लस हमारे 16 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे हम लोग वी आर द लार्जेस्ट एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट इन इंडिया, एंड that we are supplying to IOC, HPC and BPC and all oil majors plus Reliance and other private people also. So all together यदि मैं ऐसा गिनता हूँ तो लगभग 310-320 यूनिट, मुझे भी पता नहीं है, 320 यूनिट के आसपास कॉन्फिडेंस ग्रुप में आज अम्ब्रेला में है, छोटे बड़े सब मिला के, यानी स्टेशन को पकड़ो, यूनिट्स को पकड़ो, 310-320 यूनिट को। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यानी 275 यूनिट्स में गया ही नहीं हुआ आज। तो ये जो टीम है ना, वो टीम ही काम करती है। हम तो उसी के हमारा दिशा निर्देश हम देते रहते हैं, पर आज भी जैसे अभी हमने एक यूनिट एक्वायर किया, अभी दहेज में एक यूनिट हमने, आप सबको पता होगा शायद, वो लालजी भाई पटेल करके एक थे, उन्होंने जिन्होंने एक मोदी जी का सूट खरीदा है, उन्होंने आज भी अपने यहाँ पे लगाया, बड़े अच्छे डायमंड मर्चेंट है, करीब आज भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा है। बट उन्होंने सीएनजी यानी हाई प्रेशर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, हाइड्रोजन सिलेंर, सीएनजी सिलेंडर बनते हैं, वो यूनिट उन्होंने लगाया था। उनको उतना जमा नहीं, तो उन्होंने वही यही कहानी जैसे गोकुलदास जी जैसी वैसी कहानी में उन्होंने मुझे याद किया और मैंने वो यूनिट, हम लोगों ने उसको टेक ओवर किया। बट मैं यूनिट में गया, बट वो 1 साल के बाद उस यूनिट में गया, वो यूनिट देखा भी नहीं। वो हमारे विमल जी गए और 2-3 जने जो मैंने कमेटी बनाई जो सब गए, उन्होंने फाइनल करके उस यूनिट को टेक करके बताया कि नहीं ये करना है, और मैंने उनको एग्री किया। तो जब मेरा इन शॉर्ट में कह रहा हूँ, जो कि टीम वर्क जो होती है ना, वो आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाती है। जब टीम आपके साथ में ऐसी टीम हो कि जो आगे बढ़ने की आपके, नो डाउट आपका मोटिवेशनल लगता है, आपकी इच्छा लगती है, आपका चैलेंज लगता है, सब कुछ लगता है, बट साथ में टीम होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि हमने एक यूनिट वोल्टास का था, उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया है कि वोल्टास यूनिट जैसे 97 की बात थी, वो दूसरा यूनिट 97 में मैं वोल्टास ने टेकन ओवर होल आल्विन डिवीजन, मीन्स आल्विन हैज सोल्ड देयर होल डिवीजन टू वोल्टास।
इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वो भी आल्विन ने पूरा डिवीजन वोल्टास को बेचा था 97 में। और वोल्टास इज मेनली इंटरेस्टेड इन रेफ्रिजरेटर एंड फ्रिज बिजनेस। तो उन्होंने उस सिलेंडर यूनिट को ऐसा ही मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आई अप्रोच देम। मिस्टर भांडारकर करके उनके वाइस चेयरमैन थे। जब उनके पास पहुंचा तो वो भी जेब में तब ये यूनिट ले लिया था पहले ही, अब दूसरा यूनिट वापस 10 करोड़ रुपए फिर से इन्वेस्ट करना लगभग, यानी पर फिर भी साकाश के साथ में गया कि नहीं करना है कुछ। वहाँ पर भी वही सेम, अब उन्होंने उसको मैंने वहाँ पे दूसरी तरीके से, अलग अलग तरीके से अलग अलग धंधे होते हैं बिजनेस करने की। आप में मनसा होनी चाहिए बिजनेस किस तरीके से करना है। यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आपको कैसे जीतना है वो जीतते आना चाहिए। वो भी वही कहानी उनको ही बताई। मैंने बोला कि भाई देखिए ये 24 महीने के चेक मैं आपको दे रहा हूँ, टोकन तो दिया, वोल्टास यानी टाटा के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे को आप कुछ भी मत लिख कर देंगे तो भी चलेगा, आपकी सेल डेट जो यूनिट की है मेरे को 2 साल के बाद दीजिएगा। आप 2 साल के बाद यूनिट की सेल डेट करेंगे तो भी मुझे चलेगा, बट मुझे पूरा भरोसा मुझे यूनिट लेना है। उन्होंने भी अपने चेयरमैन उनके बोर्ड पे बात की और उन्होंने उस करके 24 महीने के चेक मैंने पीडीसी दिया उनको और यूनिट उन्होंने मेरे को मतलब हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने सेल डेट वगैरह नहीं लगी थी, सेल डेट मैंने ही बोला था कि आप 24 महीने के 24 चेक आपके पूरे क्लियर हो जाए, बाद में आप सेल डेट कीजिएगा। क्योंकि अब ऐसा था ना, इतनी जल्दी ऊंचाई जब दौड़ता है ना आदमी तो बैंक वगैरह भी थोड़ा देखना करना टाइम तो लगता है उसमें भी, तो वो नहीं करते हुए मैंने ये किया। अब उस वक्त की कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। जब मैंने वो पूरा ले लिया, टोकन दे दिया, जब बॉम्बे पहुंचा तो इंडियन ऑयल मतलब 3 जनों की कमेटी रहती है, आईओसी, एचपीसी, बीपीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनकी टेक्निकल ऑडिट टीम आके बैठी। उन्होंने बोला यार ये लीज पर इस आदमी ने यूनिट लिया है, 2 साल में यदि ये लीज में कुछ सिलेंडर का कुछ प्रॉब्लम आया तो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल। इधर टाटा और नितिन खारा या कॉन्फिडेंस कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल। वहाँ कहानी का फिर वापस वही ट्विस्ट आने पे फिर वापस उनको समझाया कि नहीं सर, यू टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम मी, व्हाट्सएवर कोई भी कहीं पर भी परेशानी आई एम हियर। मेरा एक यूनिट चल ही रहा है आपके अंडर में, ये दूसरा यूनिट आएगा। क्योंकि मेन हमारा सिलेंडर सप्लाई सिर्फ आईओसी, एचपीसी 90% सप्लाई जो आपके घरों में आता है वो आईओसी से आता है या एचपी से आता है, बीपी से आता है। वो सिलेंडर हमारे यहाँ से पहले उनको जाता है और उनके बाद फिर अपने घरों में आता है। तो मेन सप्लाई, मेन कस्टमर, तो उन्होंने भी समझा। फिर पहले तो थोड़ा आनाकानी हुई, तो काफ़ी ट्विस्ट आने जाते रहते हैं। फिर उसके बाद और यूनिट हमने टेक ओवर करते गया, एक अंकलेश्वर में यूनिट टेक ओवर किया, एक भोपाल में किया। तब तक फिर 2000 का साल आ गया और टेंडर सिस्टम आ गई। टेंडर सिस्टम यानी कोई भी यूनिट नया लगा सकता है। तो आई डेवलप वन वेरी बिग यूनिट इन खपोली। वो भी मेरा एक चैलेंज था। इंडिया का सबसे बड़ा सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंने फिर खपोली में लगाया, जो कि 1 लाख सिलेंडर पर मंथ की कैपेसिटी का प्लांट था वो, और आज भी चल रहा है अच्छे से। तो उस यूनिट को लेने के बाद कंपनी ने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। फिर से सोचा कि क्यों ना बॉटलिंग इंपोर्ट करके, हम एलपीजी इंपोर्ट करके क्यों ना बॉटलिंग में आए। तो हमने पहला बॉटलिंग प्लांट यहाँ कलमेश्वर में लगाया, फिर दूसरा नासिक में लगाया। ऐसे अलग अलग 58 बॉटलिंग प्लांट कंपनी ने लगाया। इन बिटवीन 2003-4 की बात थी, 4 की बात थी, जब मैंने 2 बॉटलिंग प्लांट टेक ओवर किए थे। एक उदयपुर में था, एक पाली में था। कंपनी का नाम था देवर्सा गैस लिमिटेड। वो कंपनी का आईपीओ आया था 1995 में। उसका आईपीओ, अशोक जैन उसके एमडी थे। अब दोनों प्लांट का सौदा हो गया मेरा, मैंने प्लांट तो ले लिए। फिर उसके बाद उन्होंने, अशोक जैन ने मुझे कहा कि नितिन भाई आपने प्लांट ले लिया, अभी इसमें मेरे पास कोई दूसरा एसेट नहीं है, ये लिस्टेड कंपनी है, क्यों ना आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। तो पहले तो लिस्टेड कंपनी का उतना अपन नहीं समझते थे, पहले अपन प्राइवेट लिमिटेड में ही खेलते थे। उस वक्त मेरे पास में करीब 37 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई थी अलग अलग, क्योंकि कोई भी यूनिट रहता अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहता था। तो जब उन्होंने कहा तो पहले सोचा कि क्या करना है, लिस्टेड कंपनी फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है, सभी रहता है, क्या करना है मुझे। तो मेरे साथ में विमल था। विमल क्या था, थोड़ा बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ तब से थोड़ा शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी है। तो उसने थोड़ा सा बोला कि थोड़ा जानकारी मैं भी करता था, ज्ञान अपन भी लेना देना करते, बट विमल जितना नहीं। विमल तो मेरे ख्याल से शायद माँ के पेट के अंदर से ही शेयर बाजार करता था। तो उनने मेरे को बोला कि नहीं सर ले लेते हम लोग यूनिट इसको, कंपनी को टेक ओवर कर लेते। तो आई डिड फॉर्मेलिटीज, ऑल फॉर्मेलिटीज करके जो ओपन ऑफर वगैरह करनी पड़ती है वो करके हमने टेक ओवर किया। ये 2004 की बात थी। देन 2007 में मेरे पास कुछ मेरे और एडवाइज़र आए बॉम्बे से, दिल्ली से, और दे एडवाइज मी दैट यू हैव 37 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो व्हाई डोंट टू मर्ज ऑल दिस कंपनी इनटू योर कॉन्फिडेंस। तो मैं
बोला यार अभी कैसे करूँ, तो उन्होंने बताया कि यू विल गेट अ गुड माइलेज फ्रॉम द मार्केट। तो मैंने पूरा उनकी बात समझ ली और उसके बाद हमने 37 कंपनी जो हमारी थी उसको रिवर्स मर्ज करके एक अम्ब्रेला नया बना लिया जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड बन गया। जैसे ये कंपनी मतलब डेवलप होती गई तो यानी जैसे मर्ज हो गई तो काफ़ी आप सभी को काफ़ी लोग इसमें से कॉन्फिडेंस के शेयर होल्डर भी है, उनको सबको बता दी। तो 2008 में ऐसी तेज़ी भागने लग गया हो और उसके बाद फिर वापस बहुत लंबी कहानी चलते चलते फिर हमने ऑटो एलपीजी सेगमेंट में चालू किया। अभी जैसे मैंने बताया हमने सीएनजी यानी हाई प्रेशर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में भी चालू किया, ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी जैसे कोविड हुआ था तो उसमें भी हमने काफ़ी 1,30,000 करीब सिलेंडर ऑक्सीजन के बना के मार्केट में दिए। ये कहानी तो बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से 2-3 बार मुझे आना पड़ेगा पीयूष भाई यहाँ पर, तब उस कहानी को मैं पूरा कर पाऊँगा यहाँ पे। तो बट फिर भी इतना ही कहूँगा कि कल भी कहा था भावेश भाई ने जहाँ बुलाया था, कल भी मैंने यही दोहराया था कि जिंदगी की असली उड़ान मेरी बाकी है अभी, और मेरे इरादों का भी इम्तिहान अभी बाकी है। अभी सिर्फ नापिए मुट्ठी पर जमीन, अभी सारा आसमान बहुत कुछ है। थैंक यू एंटरप्रेन्योर जो आए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और थैंक यू वेरी मच महेश जी, श्रवण जी और पूरी रोटरी टीम, साथ में हमारे यंग जो हमारे प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब के प्रीतेश, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से बुलाया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। I request all the past presidents to please come on the dais for salutation process. Please sir. Please sir. Thank you, sir, for your kind words and for inspiring us for. Piyush bhai please. Kadolkar ma'am. क्या होता है कि कहानी बोलने जाता हूँ ना तो लोग घड़ी की तरफ भी कहानी है भी तो बड़ी भी है। नहीं A very big round of applause for Shri Nitin Ji Maharaj. And we would like to present a token of love and appreciation from Rotary Club of Nagpur, Ishanya. Thank you very much, sir. Thank you for coming here. आपकी प्रेरणा हमेशा हमें मिलती रहे। यूथ कॉन्क्लेव नितिन भैया, यूथ कॉन्क्लेव 1 में भी हमने आपको सुना और यूथ कॉन्क्लेव 2 में भी, और हम हमेशा इंस्पायर्ड होते रहे। थैंक यू। एंटेलिया का नाम सुनते से ही याद मुकेश अंबानी आता है। मुकेश अंबानी बॉम्बे का है लेकिन नागपुर के हमारे नितिन भाई घारा का भी एंटेलिया, उसका डुप्लीकेट एंटेलिया बन रहा है नागपुर में भी।